गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक क्लास। लास्ट डिस्कशन में हमने कंपोजिट फंक्शंस को डिस्कस किया था। कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे एंड लॉन्ग लिस्ट आई सेंट यू फॉर द असाइनमेंट, but maybe some few questions were there which you could not do. So from that assignment, from the last assignment, I just would like to do some question and take question number 6 here. I take here, right? I write here question number 6. You check from the assignment. It is question number 6. Okay. So the question is that A1 set has element 1, 2, 3, 4, right? And f is the function from A to A, G is the function from A to A, right? And this is the NCERT problem. This question may become in board as well. F is the function is defined as f 1, 4, 2, 1, 3, 3, 4, 2, and so on. G the same way it is also designed. We have to find what? We have to find GOF. Okay, GOF we have to find, right? And GOF function which is from A to A. हम कैसे करेंगे? क्या हमारा प्रोसेस है? सिंपल से, इट्स वेरी सिंपल प्रॉब्लम क्लास। कुछ फ्यू स्टेप है, आप ध्यान रखिए। मैं एक क्वेश्चन करूंगा, 2 and 3 आप ट्राई करेंगे, राइट? नाउ स्टार्ट। Before to start this working, I just would like to write something here from G and F and G. You see, this is the solution. You see here, F, it is 1 and this is 4. 1 is X, 4 is Y, right? So on taking 1, you getting 4. Understand? X, Y. Simple? Clear? Next. F2 is equal to 1. F3 is equal to 3 and F4 is equal to 2. Clear? Now, come in G. Similarly, I'm writing here G1 is equal to 3, G2 is equal to 1, G3 is equal to 2, and G4 is equal to 4. Right? This is the thing what I write here from these two things, F and G. Now, starting, I'm going to solve the first part, GOF. All right. So the first part is GOF. Okay. And the GOF, and now the elements are 1, 2, 3, 4. Right. So I write here first GOF 1. We do write actually x. लिखते हैं ना हम लोग x लिखते हैं. So in the place of x I write here 1. पहले हमने first element लिया 1. Okay. After this it become क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा G bracket F1. Clear? Any issue? Right? You can see here. This one you see, if you remember in my last lecture I discussed. This is the explanation part, right? It is the explanation part, not the question part. If it is written here G of F of X, what does it mean? Meaning is that G bracket Fx bracket close. Clear? So from that way I'm writing this one. Okay. So it is G F1 and F1 which gives you 4. So it become G4. Okay. Go in this list. G4 which gives you what? 4. It comes here. 4. Okay. GOF 1. It is F1. G F1. F1 is equal to 4. I write here 4. And G4 is equal to 4. Fine. Okay. So, okay, 1 was my input and 4 is my output. तो GOF में हमें 1 पे क्या मिल रहा है? On when we getting 4. Clear? Okay. So, अब हम इसको एक साथ लिस्ट करेंगे सारी चीजों को. मैं नेक्स्ट दे रहा हूं GOF bracket, the next element is 2. 2 right here. In the same process, I will continue. G
f of 2, one again bracket. Clear? F2 which gives you 1. So it is G and 1. Clear? And the G1 which gives you 3. So this is which gives you 3. Okay? It is the input, it is the output. Clear? Next, take another, the next element, next number 3. It is very simple thing. And I hope you learn the way. एक last एक process और है, सबको एक साथ collect कर देना है. And answer has come. It is G f of 3 bracket close. On F3 we're getting what? 3. It is G and 3. Clear? And on G3 we're getting 2. It is 2. Simple. So on 3 we're getting what? 2. Clear? Okay. In the last one I am taking G, O, F and the last element is 4. It is G, O, F, F 4. Fine. F4 we getting 2. It is G 2 and on putting 2 in G we getting 1. G2 is 1. So this is 1. After this, now the question has almost finished. The final line is only left here. You see, you observe here one thing. I write here G, O, F and X I write here. Okay, X belongs to A. Now I make a curly bracket. Clear? 1 पे क्या मिल रहा है? 1 पे 4 मिल रहा है. It is 1, 4. One order pair has formed. Next 2, we're getting 3, 2, 3. Third 3 भी क्या मिल रहा है? 2. It is 2. Last one 4, right? We're getting 1. It is 4, 1. Curly bracket close. This is the final. So this is the answer of GOF, right? In a same way, you will find for an FOF, right? And second I'm not doing. You try the second one, okay? Third one I'm doing here, okay? So right here, okay. So you copy down the answer. This is the first answer. And I'm going to do now a third part, right? And the third part is FOF, right? FOF, FOF है. अब इसमें आपको लेना है, पहले क्या एलिमेंट लेंगे आप? 1, I write here 1. फिर क्या होगा? F1. क्लियर? अब F1 में क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है. क्या हो जाएगा? इस F1 की प्लेस पर 4 आ गया. वेरी सिंपल. कहां से आ गया? स्टेबल से आ गया. फिर F4 पे क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है. 2 has come. 1 is the input, 2 is the output, right? Clear? It's very simple. Second, see, f of 2, f of f, 2 bracket close. On F2 we're getting 1. It is F1, and on F1 we're getting 4. This is 4. Right? It is, but I'm trying to solve the question in a very little speedy way, because the same process I'm copying here. There is no change in the process. It is f of 3 bracket close, and on F3, the answer is 3. F3 again. See, F3 पे क्या मिल रहा है? 3. Last one, f of
f of 4, f bracket f4. This is the bracket. Clear? And this is f of f4, we're getting 2. 2 has come here. Okay. And on f2, we're getting 1. So 1. So now I'm going to write the final answer. F of x, and x belongs to A. A is set, right? Curly bracket, order pair. On 1 पे क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है. Next 2 पे क्या मिल रहा है? 4. Next 3 पे आपको 3 मिल रहा है. And 4 order pair 4 पे आपको 1. So this is the final answer. Clear? So you copy down this answer and you try the second part at your own way. Try. Class, the second question I taken here, and this is the question number 7 in your last assignment of the last class. Class, इस क्वेश्चन में ये है, देखिए इसमें there are two functions, one is f and g. Function f, right, mapping from natural number integer to integer, right? Fn is defined as 5n, where n belongs to integer. Next g, from natural number from integer to integer. Gn is defined as n by 5 when n is a multiple of 5, and it is 0 when n is not multiple of 5. This is the question. We have to prove Goff is equal to Iz and fog is equal to, it does not equal to. क्लास इसमें समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को हम ग्राफिकली आपको समझाएं, आपको अंडरस्टैंड होगी. एक्चुअली अभी तो आप क्या समझ रहे हैं, क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा, कहां कुछ क्यों मिल जाए, या क्या कैसे आप, जैसे हमने गॉफ का आपको वो जो एक 3 बॉक्स बनाकर एक एरो डायग्राम बनाया था, तो थोड़ा सा हम उसमें आपको समझाना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, एक कॉन्सेप्ट. बस देखिए, इंपॉर्टेंट थिंग इज द कॉन्सेप्ट. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इन सारे क्वेश्चंस के बाद, इनवर्टेबल फंक्शन. इनवर्टेबल फंक्शन में क्लास, जैसे आपने देखा कि कंपोजिट फंक्शन आपने डिस्कस किया, अभी आप इनवर्टेबल फंक्शन आप एक्सप्लेन करेंगे. इसको आप यूज तो कर ही चुके हैं, या अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टडी किया है तो आप ऑब्वियसली जानते हो. तो क्लास इसमें क्या है, बताना चाहता हूं कि इसमें कुछ प्रोसेस हैं, कुछ स्टेप हैं. आपको उन प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से देखना होता है कि वो क्या प्रोसेस हो रहे हैं. जितना अच्छा वो प्रोसेस, जितना अच्छा वो मेथड आपको लर्न होगा, आप उतना क्वेश्चन को टफ से टफ प्रॉब्लम पे इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे. अदरवाइज क्वेश्चन आपके दिमाग में, आपके माइंड में हमेशा आपको कॉम्प्लेक्सिव वे में दिखेगा कि कहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो, कैसे क्या एंड सो. क्लास थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं, इधर ध्यान दीजिए. क्लास देखिए, मैंने क्या बनाया, जैसे मैंने आपको 3 सर्किल ड्रॉ किए थे, जो मैंने ऑलरेडी वहां किए थे. क्लास देखिए, ये सेट है इंटीजर्स के, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और ये भी इंटीजर है. ओके क्लास, अब पहले आप इसकी मैपिंग कर रहे हैं, इट इज एफ. देखिए ये एफ है आपका, फ्रॉम जेड टू जेड, एंड जेड इज इक्वल क्या है, एफ एन. तो मैं लिख देता हूं एफ एन इज इक्वल टू 5. क्लियर? अच्छा, मैं एक जो उसका जो मैंने जो मैंने लास्ट टाइम जो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था, वो मैं फिगर आपको ड्रॉ करता हूं, तो आप कंपेयर कर लेंगे उसको. ठीक है, मैं कंपेयर कर रहा था. देखिए मैंने क्या बनाया था आपको, मैंने ये फिगर आपको अगर लर्न हो, मैंने बनाया था, ये एफ था, ये जी था, ये आपका सेट ए टू बी एंड इट इज बी टू सी, राइट. एक मैंने एक और फिगर दिया था, ओके, फ्रॉम ए टू सी, इट इज गो फ्रॉम ए टू सी. ठीक है, यहां पर एक्स था, तो क्या फॉर्म हो रहा था एफ एक्स. देखिए एफ ने एक्स को लिया, क्या फॉर्म हुआ, एफ एक्स. क्लियर? अब ये जी है ना, ये जी एफ एक्स को लेगा, क्या बनाएगा, जी एफ एक्स. क्लियर? सिंपल. एफ जो है वो एफ
कैरी कर रहा है x को, क्या बन रहा है fx। अब यहां g कैरी करेगा fx को, क्या फॉर्म करेगा gfx, मींस फॉर्म्ड होगा g ब्रैकेट fx। क्लियर। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं gov g of f and x। क्लियर, सिंपल थिंग, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब यहां पर आ जाइए। अब इसमें आपने देखा ये fn है। अच्छा, अब fn के बाद आपने इसमें ये आपका g है क्लास, g के अंदर दो कंडीशंस है। ये gn है आपका, कि n by 5 होगा when n is multiple of 5 और 0 होगा when n is not multiple of 5। क्लियर। तो इस g के अंदर दो एरोज हैं, तो ये तो आपका फॉर्म्ड हो गया fn, हो गया। एंड fn की वैल्यू क्या है, fn is 5n। 5n is what, 5n is multiple of 5। ओके, तो मल्टीपल ऑफ 5 है, तो मल्टीपल ऑफ 5 ये आपका। इसमें gn कैसे एक्सप्लेन हो रहा है, n by 5। क्लियर, कंफ्यूज मत होइए, बस जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए। ओके, अब अगर हम g of fx फॉर्म करेंगे, राइट, तो हमें यहां क्या आता है, यहां पर g of fx आ रहा था, यहां पर क्या है, x के बेस पर मैंने क्या लिया है, n लिया है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये बन जाएगा g of fn। क्लियर, ओके। fn क्या है, व्हाट इज fn, fn इज इक्वल टू 5n। आप लिखेंगे 5n, लिख दिया आपने, सिंपल। क्लियर। अच्छा जी, अब इट इज 5n, मतलब g के अंदर क्या है, 5n है। 5n मींस मल्टीपल ऑफ 5। सिंपल दिख रहा है आपको, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो व्हेन n इज मल्टीपल ऑफ 5 तो क्या होगा, n by 5 होगा, राइट। तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा 5n by 5, इट इज n। 5 5 कैंसिल। मैंने पूरे क्वेश्चन को इस पे से सॉल्व किया। क्लियर। अब ये जो आपका गॉफ बना, देखिए गॉफ बन रहा है, यहां पर आपका जो GOF ऑफ n फॉर्म्ड हुआ, क्या फॉर्म्ड हो रहा है, आपने n इनपुट दिया था, आउटपुट क्या मिल रहा है, फाइनली n मिल रहा है, इट इज n। n इनपुट है, n आउटपुट है, राइट। सो दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, तो ये आपको सॉल्व हो गया, बट ये मैंने अभी आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अभी इसे आप अपने एक्सप्लेनेशन के लिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्लियर। बट एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं करेंगे आप एग्जाम में प्रोसेस है, इसको आप फॉलो करेंगे, बहुत सिंपल, यही काम यहां पर करना है आपको। देयर इज नो चेंज, कोई बड़ा चेंज नहीं। अच्छा, अब यहां देखिए, यहां मैं क्या लिखूंगा, ये आपका एक्सप्लेनेशन है, राइट, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि मैंने कैसे समझाया आपको। अब यहां पर मैं लिखूंगा, पहले मैं लूंगा गॉफ ऑफ n। ये n क्या, ये n कौन सा है, ये n ये वाला है, कहां से बिलोंग कर रहा है, z से। क्या लिखा मैंने, n बिलोंग्स टू, i लिख दें, j लिख दें, जो भी, चलिए j ले लेता हूं। फिर क्या बनता है, ये बनेगा g ऑफ fn, g ब्रैकेट fn, बन गया। अच्छा जी, नाउ fn की वैल्यू क्या है, व्हाट इज fn, fn इज 5n, राइट। तो हम fn की प्लेस पे क्या लिखेंगे, इट इज 5n लिख दिया मैंने। अब g के अंदर जो टर्म आ रहा है, और वो किस में आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 5 में आ रहा है, ठीक है। तो when n is multiple of 5, it is n by 5। जो मैंने वहां किया, सेम वर्किंग यहां पर कर रहा हूं, राइट। तो ये सॉल्व कैसे होगा, यहां पर इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो इट इज 5n अपॉन 5, दिस इज n, दिस इज इनपुट, इट इज आउटपुट, बोथ आर
सेम. सो व्हाट? सो गोफ इज इक्वल टू आईजेड. सर मैंने आईजेड क्यों लिखा? आईजेड मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो एन है ये इस एन से बिलोंग कर रहा है, इसलिए यहां पर जेड. क्लियर? अब मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं, ध्यान सुनिएगा. अगर मैं इसके नेमिंग ए कर दूं, मैं इसका इस ब्रैकेट इस सर्किल का नेमिंग बी कर दूं, इस सर्किल का नेमिंग सी कर दूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा आई ए, क्योंकि अब ये अगर मैं इसकी नेमिंग ए कर देता हूं तो ये ए हो जाएगा. क्लियर? ओके. तो अब यहां पर क्या आ गया? यहां पर हो गया गोफ ऑफ एन इज इक्वल टू आई जेड. इट इज हिंस प्रूफ. द फर्स्ट पार्ट, सो नाउ हियर द फर्स्ट पार्ट हैज प्रूफ. अब हम इसका जो सेकेंड पार्ट है फॉग, राइट? अब फॉग डज नॉट इक्वल टू आई जेड हमको प्रूफ करना है. ठीक है. अब हम उधर से लेकर आएंगे. पहले हम जी से पहले इससे यहां पर आएंगे, फिर यहां से यहां पर आएंगे, तो जो फॉर्म्ड होगा वो फॉग फॉर्म होगा. ठीक है. देखिए यहां पर ध्यान दीजिए. क्लास आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके. क्लियर? अच्छा जी. अब हम नेक्स्ट वाले को सॉल्व करने जा रहे हैं. इसको मैं इरेज कर रहा हूं. मैंने फिर कहा दिस ऑल द फिगर इट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग. ओके. अच्छा. अब मैं नेक्स्ट लेता हूं फॉग ऑफ एन. क्लियर? फॉग ऑफ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एफ ऑफ जीएन. क्लियर? सिंपल थिंग. जीएन के जीएन के दो केसेस हैं. फर्स्ट केस क्या लिखेंगे आप? फर्स्ट केस आप लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए. आप एफ लिखेंगे. एफ तो लिखा आपने. जीएन के दो केस हैं. पहला केस क्या है? एन बाई 5. यहां पर लिखेंगे एफ एन बाई 5 कॉमा इफ n is multiple of 5. जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा. सेकेंड आप लिखेंगे f, आप लिखेंगे 0. 0 कब आ रहा है? 0 जब आएगा जब f is not multiple of 5. if n is not multiple of 5. क्लियर? जब आपका एक ब्रैकेट फाउंड हुआ. ओके. अच्छा. अब इसमें f n by 5 where n is a multiple of 5. n क्या आ रहा है? n 5 का मल्टीपल आ रहा है. तो अब इसमें क्या करेंगे? अब f को सॉल्व कैसे करेंगे? f में ये f है आपका, बहुत ध्यान दीजिएगा. अब यहां बनेंगे दो, जैसे दो बने ऐसे यहां पर दो बनेंगे. अब f के अंदर 5n यूज होगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू n बाय 5. ये ऐसे ही कॉपी होगा. ये आपका कॉपी हो गया. क्लियर? अच्छा जी. नेक्स्ट अब आप लेंगे f0. देखिए fn क्या था? 5n था. क्लियर? मैंने 5 लिखा. n के प्लेस मैंने क्या लिखा? n बाय 5 लिखा. थोड़ा सा स्लो समझना पड़ेगा. यहां पर f0 है, यहां fn है, तो क्या आ जाएगा? 5 इंटू 0. यहां आ जाएगा 5 इंटू 0 इफ n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5. क्लियर? तो ये बन गया. यहां पर ये कैंसिल हो गया. अब नेक्स्ट आप एक और लाइन लिखिए. अब मैं ये ब्रैकेट इसका ध्यान यूज नहीं है, मैं इसको मैं लिस्ट कर देता हूं. अच्छा जी. अब यहां पर ये आ गया, इसको कॉपी करिए. इट इज n if n is multiple of 5. Okay, and 5 zeros are 0 if n is not multiple of 5. Clear? Okay. अब आपने क्या देखा? देखिए fn में ये हमारा इनपुट था n.
n इनपुट था और ये हमारे आ रहे हैं आउटपुट। मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए यहां पर लिख देता हूं, ये आपका इनपुट है और ये आपकी आउटपुट। इट इज ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन, एग्जाम में मत लिखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आपने n इनपुट दिया, n मिल रहा है, ये तो क्लियर है। बट नेक्स्ट कंडीशन में आपने n इनपुट दिया, आउटपुट क्या आ रहा है? 0 आ रहा नहीं आ रहा है? सेम आना चाहिए बट सेम नहीं आ रहा है। एक केस से हमारे दूसरे केस में सेम नहीं आ रहा है, मींस FOZ। अब यहां कैसे लिखेंगे? अब आप यहां पर लिखेंगे, इसको हम कंक्लूड करेंगे इस पूरे क्वेश्चन को इस तरह से 2 लाइन में। आप लिखेंगे f of g of n which coming by n, सही, राइट। तो यहां पर इस कंडीशन पे इसने मुझे 0 दिया। ये क्या था? n is a when n is multiple of 5 and when n is not multiple of 5, क्लियर? दोनों में n आना चाहिए, एक पे n आ रहा है, एक पे n नहीं आ रहा है। Hence implying that f of g, right, f of g does not equal to Iz, it is hence true. Okay class, it is very simple thing. Copy down the whole solution, right? Do it your own way again, right? And it is only for explanation, this is not the question part, clear? क्लास मैंने एक क्वेश्चन और लिया है कंपोजिट फंक्शन का। इस क्वेश्चन में 2 टाइप के फंक्शन है, f and g। f is r to r, real number to real number, and f is signum function, right? And g is the greatest integer function, and this is the x and the rectangle bracket from r to r. g is from g डिफाइंड कहां से हो रहा है, कहां से मैपिंग हो रही है? r से r, क्लियर? ओके, अब इसकी मीनिंग मुझे बहुत एक्सप्लेन नहीं करना बार बार, लेकिन मैं फिर से बोल देता हूं एक बार कि शायद कुछ कंफ्यूजन रह गया हो तो क्लियर हो। जैसे कि ये फंक्शन सेट आपका आर है, सेट क्या है? आर, सेट आर है, ओके। ये फंक्शन है, दिस इज फंक्शन जी, ओके। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा गॉफ। एक बार और आपने लर्न कर लिया, एफ से इस फंक्शन से आप एफ से गए, देन आप इस जी में गए। जब आप फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, जब आप फर्स्ट सेकंड से आप थर्ड जाएंगे, एफ से जी की तरफ जाएंगे तो क्या बनेगा? तो आपको गॉफ मिलेगा, इट इज गॉफ, क्लियर? ओके, अच्छा। अब तो और इसका रिवर्स जब आएंगे तो फॉग मिलेगा, इसको आप लर्न कर लें। कुछ स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है कि फॉग ऑफ कब बनता है, कंफ्यूज होता है वो, ठीक है ना। तो एफ से जी की तरफ जाएंगे तो क्या बनेगा? गॉफ, राइट। मैं एक और फिगर बनाता हूं, ध्यान से देखिए। ये आर रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर, क्लियर? अच्छा जी, अब आप इसे इधर आ रहे हैं, इधर आप जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एफ से जी की तरफ। अब आप जी से इधर आए, फिर ये आपका एफ है, इधर आ रहे हैं। जब आप फर्स्ट थर्ड में आएंगे तो क्या बनेगा? देखिए डायरेक्शन देखिए आप, तो आपको फॉग मिलेगा, ठीक है। ये किधर जा रहे हैं? ये आप जा रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, ये आप आ रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इस पॉइंट को आप लर्न कर लीजिएगा, ओके। अच्छा जी, ये सब आर आर आ रहे हैं, तो फॉग कहां से आएगा? तो आपका जो जो गॉफ ऑफ एक्स लेंगे, दिस इज फ्रॉम आर टू आर, ओके। नेक्स्ट आप फॉग लीजिए, फॉग कहां से? आर से आर, आर से आर, तो ये डिफाइंड होगा फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मैंने एफ एंड जी 2 फंक्शन लिए, सिग्नम फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहां लिखा हुआ है देन डिटरमाइन वेदर द गॉफ एंड फॉग कोइंसाइड बिटवीन 0 and 1, क्लियर? क्या ये दोनों 0 1 के बीच में लाई कर रहे हैं? आप कोई भी एक वैल्यू ले लें जो 0 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 1/3 ले लिया, 0.3 इसके बीच में लाई करेगी, तो मैंने लेट कर लिया, लेट x इज इक्वल टू 1/3, क्लियर?
अब इसको मैं दोनों में प्लेस करूंगा और चेक कर लेंगे, इट्स वेरी सिंपल। देखिए अब आपने यहां पर पहले गॉफ में रखा 1/3। देखिए सब सिंपल स्टेप है, इट्स वेरी सिंपल स्टेप। अच्छा जी, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी ब्रैकेट एफ ऑफ 1/3। ठीक है, एफ 1/3, एफ क्या है, एफ ये आपका, एफ के बाद आप इधर है। अच्छा जी, 1/3 क्या है, पॉजिटिव, जब x पॉजिटिव होगा तो वैल्यू क्या आएगी, 1। ठीक है, तो यहां क्या होगा, ये आपका हो जाएगा g ऑफ 1 हो गया। ओके, अच्छा g क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब आप g यहां 1 प्लेस करेंगे तो 1 का जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो ये आपका हो गया, इट इज 1, आंसर इज 1। तो 1/3 से आपको 1 मिल गया। ठीक है, ये क्या लिया आपने, ये आपने गॉफ को सॉरी। अब आप फॉग करते हैं, तो फॉग आपने लिया और फॉग में सेम रखा आपने 1/3, सेम वैल्यू रखेंगे। अब आप पहले लेंगे g 1/3, f ब्रैकेट g 1/3 ब्रैकेट क्लोज, g 1/3। अब g 1/3 का मतलब क्या है, g 1/3 क्या मिलेगा आपको, g 1/3 आपको 0 मिलेगा। देखिए यहां पर ये आपका 1/3 रखा, राइट। तो अब आप जब बनाएंगे रियल नंबर लाइन, सब लोगों को ये पता होगा, क्लास 11 की बात है, ये आपका होगा 0.3 1/3। इसका लेफ्ट नंबर लेंगे, लेफ्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यहां पर क्या आएगा, 0। फिर तो यहां पर आ जाएगा f ऑफ 0। बट आपको ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, आपको ब्रैकेट में बताना पड़ेगा क्वेश्चन में कि 1/3 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 0 होता है। अब आप नीचे आइए, f0, f0 0 पे क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो आपको क्या मिला, f0 से क्या आया, 0 आया। देखिए यहां 1/3 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यहां 1/3 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, राइट। मीनिंग इज दैट कि गॉफ does not equal to fog when x lying between 0 and 1। दोनों अनइक्वल आ रहे हैं, अनइक्वल है मतलब दोनों में कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। तो आप लिख देंगे इट डज नॉट कोइंसाइड, सॉरी दे डू नॉट कोइंसाइड, या आप लिख देंगे यहां पर फॉग एंड गॉफ डू नॉट कोइंसाइड। इतना आपका फाइनल आंसर है, और आप इसको आप इरेज कर दीजिए।